Good evening, ladies and gentlemen. Big victory today for the undying Astha and relentless dedication of Shiv Bhakts, which has been rewarded with the right to pray. The historic wrong of 31 years when Astha was shackled and locked up in the Tehkhana has finally been corrected. Today, for the first time since 1993, which means 31 years, Pujari appointed by Kashi Vishwanath Tirth Kshetra read Vedic chants, ring temple bells and offer prayers to Hindu deities for devotees. It's a momentous occasion, momentous day. Today their prayers have been answered. For 31 long years, idols of Hindu deities like Lord Hanuman, Lord Krishna, Lord Ganesha, Lord Vishnu, Lord Shiva were left to languish. Today they were given their rightful respect. Listen in to those who fought for 3 decades to get what's rightly theirs. वहाँ का पूजा उजा जो है मला फूल चढ़ा करके जो मूर्तियाँ थी उनको जो है पूजा उजा किया गया। जैसे कमल उमल हैं, जैसे और आकृतियाँ उसमें बनी हुई हैं मूर्तियों की, तो उन सबों की जो है पूजा उजा हुआ, छत छिड़का गया। उसके बाद जो मूर्तियाँ वहाँ पर रखी हुई हैं क्षतिग्रस्त जो है, तो उन सबों का भी जो है पूजन पूजन करा करके ये सब जो है मंत्रोच्चार से पूजन हुआ। निश्चित रूप से ये पूरे जो विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ परिवार है वो सबके लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है। मेरी शुभकामना है कि आगे की भी व्यवस्था सारी उसी तरह से बहुत अच्छी होती चली जाए। पूजा पाठ जो है उसी विधि से होगी जिस विधि से बाबा विश्वनाथ की होती है। विधि जैसे प्रातः काल है, मंगला आरती हुई, फिर उसके बाद मंगला आरती है, भोग आरती है, सायंकाल की आरती है, ये सब प्रक्रिया होगी। Remember, in 1993, prayers in the Tehkhana were banned by the then Mulayam Singh Yadav government, although there was no written order, no court order, nothing to that effect. Gyanvapi was just simply surrounded with iron wires, barricades, even blocking off the Nandi and the road that led from Nandi to the basement of this Tehkhana. This ban was purportedly imposed in view of the Babri Masjid demolition on the 6th of December in 1992, but it was only on 4th of December 1993, after the Mulayam Singh Yadav government came to power in Uttar Pradesh, that this area was fenced off. Listen in to Mulayam Singh Yadav from August 15th of 1994, where he can be heard justifying this act in the name of protecting secularism. आज से 8.5 महीना पहले इस प्रदेश की महान जनता ने सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करके सत्ता की बागडोर समाज के दलितों, कमजोरों, गरीबों की अगुवाई करने वाले तथा धर्म निरपेक्षता के रक्षकों के हाथों सौंपी थी। हमारे सामने कठिन परिस्थितियां थीं। हमारे सामने एक प्रश्न था कि सांप्रदायिकता को समूल नष्ट कैसे किया जाए। अल्पसंख्यकों की हिफाजत की हम गारंटी देते हैं। प्रदेश में शांति, सुरक्षा व अमन चैन को हमने सर्वोच्च वरीयता दी है। इसमें किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Unfortunately, 31 years later, Mulayam's son Akhilesh Yadav has now opposed the Aarti at Gyanvapi in a tweet questioning the haste. The tweet came out at midnight last night, just around the time that the puja was being conducted in this Tehkhana of the Vyas family. While the BJP trains its guns at the so-called secularists, watch how others try to block Astha again despite a court order. व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हुआ। गंगा जल छिड़का गया, गंगा जल छिड़क करके उसको पवित्र किया गया। वहाँ भूमि को उसके बाद अच्छे पर छिड़क करके वहाँ पूजा जो है चालू हुई। और आज हम बहुत
बहुत खुश, नंदी प्रमुदित होगी, हर्षित होगी कि कम से कम एक सीढ़ी तो हुआ ज्ञान वापी मुक्ति का। अखिलेश को सवाल खड़ा करने का औचित्य ही नहीं है। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है, ये सरासर गलत फैसला है। आप पूजा करने दीजिए, जहाँ भी उनकी मर्जी है पूजा करें, मगर पूजा नफरत की नहीं होनी चाहिए। So, ladies and gentlemen, the legitimate question that we're asking on the news hour tonight: why sully prayers with politics? That's the question, and that's the debate on the other side. You're watching the News Hour first. Debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु जैन साहब, वकील हैं हिंदू पक्ष के, वारिस पठान साहब प्रवक्ता हैं और सीनियर लीडर हैं AIMIM असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी पे। तो वारिस पठान जी नमस्कार, प्रणाम, आदाब, और मैं ये भी कहूंगी आपसे कि सत श्री अकाल। सवाल ये है, और पहला राउंड, फायर राउंड पहला जो हम पूछ रहे हैं आपसे सवाल, व्यास जी के तहखाने में पूजा से ज्ञानवापी केस पर क्या असर पड़ेगा? आपके मन में किस तरह की मंशा है और किस तरह के सवाल हैं? देखिए नविका जी, सबसे पहली बात तो ये, कल अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील ने भी कहा था और हमारा भी ये कहना है कि जो अदालत का फैसला आया वाराणसी कोर्ट का, वो गलत फैसला है। वो फैसला पर से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के दिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया था एज ए रिसीवर ऑफ वो जो तहखाना, जो सेलर था उसका, उस टाइम को इजाजत नहीं दी गई थी कि वहां पे आप प्रेयर कर सकते हैं। अब जिस दिन इनका जाने का दिन था, लास्ट दिन उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया और उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर ये सब हटा दिया जाए। मगर इतनी घाई थी, अपील करने का भी टाइम नहीं दे रहे, कुछ नहीं, और रातों रात जाकर वहां पर पूजा शुरू कर दी। अब जो मुस्लिम पक्षकार है, जो इंतजामिया कमेटी है, उन्होंने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहां भी जाएंगे और हमको यकीन है कि जो फैसला है वो मस्जिद इंतजामिया कमेटी के फेवर में आएगा। क्योंकि पता है आपको नविका जी, ये जो बीजेपी की सरकार, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, RSS वाले पूरे देश को वापस 1992 बाबरी एरा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है इस बात का कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अब तक कायम है, अब तक इस वक्त तक यहां पर अप्लीकेबल है, उसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। और ये कब बना था? पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई थी। ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि वहां क्या है, वहां क्या नहीं है, सब चीज पे चर्चा करने के बाद में एक पुख्ता कानून बना कि इस जो भी मॉन्यूमेंट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप या मस्जिद है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, 15 अगस्त 1947 के पहले का, उसका आप नेचर, उसका आप कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। ये साफ तौर से उस वक्त, क्योंकि पता था लोगों को कि इस तरह की बातें आएगी, तो इंटेंशन यही था कि इस तरह की चीजें न हो। मगर अब ये देखा जा रहा है कि इसका उल्लंघन हो, तो हम तो ये चाहेंगे ना कि बीजेपी सरकार और मोदी जी आके देश के सामने ये बोल दे कि क्या है उनका रुख प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत, क्या वो उसको मानते हैं, क्या उसको नहीं मानते हैं। ये बात उल्लंघन हुआ क्योंकि कोर्ट ने कहा 7 दिन के अंदर अंदर पूजा करवाइए। तो इसमें उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ? वारिस पठान साहब के सवाल का जवाब दीजिए। अब देखिए नाविका जी, वारिस पठान साहब आज अपने ट्रैप में फंस गए। आज ये डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे रिलाई कर रहे हो, मैं भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे रिलाई कर रहा हूं। अब चलिए आ जाते हैं केस के कुछ फैक्ट्स पे। सिर्फ ये कह देने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो गया, ऐसे तो लीगल भाषा में बात होती नहीं है, क्योंकि ये भी वकील हैं, ये भी जानते हैं। भाई एक्ट आप कह रहे हैं उल्लंघन हुआ, मैं कह रहा हूं एक्ट का उल्लंघन तो मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट ने किया, और कैसे किया वो बता रहा हूं। जुलाई 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया है, लागू हुआ है, और हमारा केस है कि नवंबर 1993 तक वहां पूजा हो रही थी। मेरा ये स्पेसिफिक एवरमेंट है कि बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहां बैरिकेडिंग लगाई गई और इस पूजा पाठ को रोका गया। अब तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 का उल्लंघन उस सरकार ने किया था जिसने पूजा पाठ रोकी, क्योंकि सेक्शन 3 क्या कहता है नाविका जी, कि जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति है और एक्ट आने के बाद जो स्थिति है वो वैसे ही रहेगी। तो एक्ट आने के बाद स्थिति क्या थी कि वहां पे पूजा पाठ हो रही थी, तो उसका एक्ट का वायलेशन किसने किया?
और आज पूरी डिबेट का जो कोर इशू है नाविका जी, वो है सवाल नंबर 2 कि इनके पास क्या प्रूफ है। और मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। ये नहीं देखिए नाविका जी, ऐसा नहीं है कि व्यास परिवार आज उठा और सीधे उसने एक मनगढ़ंत बात कही। जरा उसको नोट करिएगा, ये साहब का जाने का आखिरी दिन था, उन्होंने आदेश पारित कर दिया। आई एम सॉरी सर, आप कोर्ट के इंटेंशंस पे एक मैलाफाइड इंटेंशन एट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको इस केस के डेट ऑफ इवेंट्स नहीं पता है। नाविका जी 24 जनवरी को एएसआई रिपोर्ट खुलने के लिए कोर्ट में ये मैटर लगा हुआ था। 24 जनवरी को कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि एएसआई रिपोर्ट खोली जाए और इसकी ऑफिशियल कॉपी पार्टीज को प्रोवाइड की जाए। 25 तारीख को, क्योंकि बहुत ही वो सेंसिटिव रिपोर्ट थी, जो ऑनरेबल जज साहब थे उन्होंने इस रिपोर्ट को अपने सामने, जो सील कवर है वो सारी प्रक्रिया की गई, क्योंकि सील कवर में फाइलिंग हुई थी और उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी की कार्रवाई हुई। 25 तारीख को रात में 9 बजे हमें सर्टिफाइड कॉपी मिली। 26, 27, 28 तारीख को कोर्ट बंद था। 29 तारीख को डेट लगाई गई। 29 तारीख को नाविका जी पता है किसने एडजमेंट लिया? अंजुमन इंतजामिया के वकील ने, और कहा कि साहब हमारी तबियत खराब है, इसको किसी और दिन लगा दीजिए। कोर्ट ने इसको 30 तारीख को लगाया, क्योंकि आउट स्टेशन लोग बाहर से आए हुए थे। 30 तारीख को दोनों पक्षों को सुना गया नाविका जी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व किया गया और 31 को जजमेंट आया। तो आपने बड़ी आसानी से एक ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर आपने एलिगेशन लगा दिए। वारिस पठान जी, जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप हवाला देते हैं, उसी के तहत तो ये रिलीफ मिला है विष्णु जैन जी को। अब इसका क्या काउंटर है? विष्णु जैन जी ने कहा कि 1993 से प्रेयर वहां पर बंद कर दी गई थी, जिसका कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं था। आज तक वहां पे प्रेयर बंद थी 93 से अब तक। विष्णु जैन जी 93 में क्या आपने चैलेंज किया था इसको? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ, आपने चैलेंज नहीं किया था इसको। अब बात नंबर 2, विष्णु भाई वहीं पर आप, मैं तो वहां पे गया नहीं हूं, लेकिन आप तो वहीं पर रहते हैं। 150 से ज्यादा वहां पर मंदिरों को, जब काशी कॉरिडोर बन रहा था वहां पर, सुनिए विष्णु भाई, मैंने सवाल किया, मैं तो आपको बोला ना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अगर उल्लंघन किया था तो आपको 93 में आपने चैलेंज नहीं किया, 93 से अब तक। बात नंबर 2, काशी में जहां आप रहते हैं वहीं पर 150 से ज्यादा मंदिरों को बीजेपी की सरकार ने गिरा दिया, डिमोलिश कर दिया जब काशी कॉरिडोर बन रहा था। तो उस पर आपने कभी आपत्ति ली कि क्यों तोड़ा, उसको वापिस से उसको बनाया जाए? आपने वो भी आपत्ति नहीं ली। इसलिए नाविका जी, जो मूल क्वेश्चन है ना, इस बात का जो मेन आज जो मुद्दा है वो ये है कि अभी क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास अब कोई सवालों के जवाब नहीं बचे लोगों के। देश की जनता को जो 10 साल से गारंटियां दी जा रही थी ना जुमलेबाजी की, 15 लाख जमा हो जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, ये इकोनॉमी बराबर हो जाएगी, सारी चीजों में मोदी जी हो गए फेल। अब लोग उनसे सवाल करें तो जवाब नहीं है, तो क्या जवाब देंगे? लास्ट में ये मंदिर का आ गया। अब जो बाबरी का इशू था उस वक्त भी इसी तरह के प्रमाण पेश कर रहे थे लोग कोर्ट में, मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ऑर्डर पड़ेगी, 1000 पेज का ऑर्डर है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई प्रमाण, कोई एविडेंस नहीं मिला कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनी। दूसरी बात, जो ये एएसआई के रिपोर्ट की बात करें तो एएसआई का रिपोर्ट उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वहां पे मूर्तियां अचानक प्रकट हो गई, जैसा ये बता रहे थे कि 23 दिसंबर कर रहे हैं। और मैं आपको रोकूंगी, आपको इसीलिए रोकूंगी क्योंकि विष्णु जैन जी आपको काउंटर कर रहे हैं। आपने 2 सवाल उठाए, दोनों का जवाब विष्णु जैन जी आप वारिस पठान को काउंटर पहला बोलने तो नाविका जी, मैं बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं कि आज देखिए वारिस भाई इस ट्रैप में फंस गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के। मैं उसका जवाब देता हूं। अच्छा, मैं कोई ट्रैप में कभी फंसा ही नहीं आज तक। मैं फंसा देता हूं ट्रैप में लोगों को। कमाल क्या मैं आप फंस गए आज 93 से। आप क्या थे? आप तो चलो जब लॉयर थे, पता नहीं, मैं बता रहा हूं, आपने चैलेंज नहीं किया। आपको याद है, आपको याद है वारिस पठान जी, वो गणपति, वो ट्रैप नहीं था, ट्रैप नहीं, वहाँ अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, लेकिन नहीं फंसा, वहाँ यू टर्न था। बहरहाल अनरिलेटेड है। विष्णु जैन जी जवाब नहीं, एक्सप्लेनेशन देखिए, इन्होंने ये कहा कि नवंबर 1993 में पूजा रुकी। एक मिनट वारिस भाई, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि नवंबर 1993 तक पूजा रुकी, तो तब से कहां थे भैया? लॉ में एक शब्द होता है, और वारिस भाई खुद भी वकील है और काबिल वकील है, कंटिन्यूइंग रॉन्ग।
कि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो वो हर एक दिन अक्रू करती है और आप कभी भी उसके लिए कोर्ट आ सकते हैं। ये लीगल राइट है मेरा। इसके लिए आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछ सकते हैं कि यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाई नहीं होता है तो आप इतने दिन से कहां थे। पहली बात नाविका जी। दूसरी बात, इन्होंने वारिस भाई ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब नवंबर 93 तक पूजा हो रही थी तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 का वायलेशन तो हमारे खिलाफ हुआ है। हम कह रहे हैं कि सेक्शन 3 के तहत जो वहां पे स्थिति थी उसको रेस्टोर किया जाए। तो जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है वो सेक्शन 3 की कंप्लायंस में किया है। पहली बात। नाविका जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपके चैनल से कहना चाहता हूं। वारिस भाई को मैं फैक्ट्स बताना चाहता हूं। व्यास परिवार का और ये जो अंजुमन इंतजामिया है इसके बीच का झगड़ा आज का नहीं है, ये बहुत पुराना झगड़ा है और बहुत सारी कोशिश हुई व्यास परिवार को इस तहखाने से बाहर फेंकने की। मैं आपको कुछ लीगल हिस्ट्री बताना चाहता हूं। 11 अगस्त 1843 का ऑर्डर पढ़ लीजिए, मैं आपके चैनल से शेयर करूंगा, जिससे साबित होता है कि व्यास परिवार इस तहखाने में काबिज था। इसके बाद 12 मई 1852 का आदेश पढ़ लीजिए नाविका जी, इसी केस के संदर्भ में, जिससे साबित होता है व्यास परिवार इस तहखाने में था। 8 फरवरी 1886 का आदेश पढ़ लीजिए। 2 मई 1906 का आदेश पढ़ लीजिए। 10 जून 1925 का आदेश पढ़ लीजिए। 13 अक्टूबर 1935 का आदेश पढ़ लीजिए। एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई देख लीजिए 27 जुलाई 1996 की। तो नाविका जी, ऐसा नहीं है कि आज एक मनगढ़ंत कहानी बना दी गई और व्यास परिवार उठ के चला आया। हर एक बच्चा काशी का जानता है कि व्यास परिवार उस तहखाने में काबिज था। और नाविका जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जब व्यास परिवार को, मैंने तो अभी आपकी बात सुनी कि अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, सर एक मिनट, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया। जब व्यास परिवार को उस तहखाने से बाहर फेंका गया था तब क्या कोई लीगल नोटिस दिया गया था? तब क्या कोई लॉ का पालन किया गया था? नहीं, कुछ नहीं। जिस बात का जिक्र कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी किया है, इसीलिए राउंड 2 पर जाना अब जरूरी है, क्योंकि सवाल अब इससे एक नया बहुत ही संगीन मोड़ लेता है। और संगीन मोड़ किसी भी कोर्ट केस में कहीं ना कहीं एविडेंस की जरूरी में मिले सबूत को कोई नकार सकता है क्या? ये सबूत आए हैं, इसकी कॉपी पिछले हफ्ते मिली है सबको, सबने अपनी आंखों से देखा है। अब विष्णु जैन जी सबूतों के आधार पर जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसले सुना रहा है। आपके पास क्या सबूत है? देखिए, आपने कहा नविका जी कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसले सुना रहा है, मगर बाबरी मस्जिद के वक्त भी कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला नहीं सुनाया था, आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया था। वहां पर कोई सबूत नहीं थे कि वहां पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई थी, कोई सबूत नहीं थे कि रात के अंधेरे में मूर्ति प्रकट हो गई थी। इस बार भी यही हो रहा है। अब बात नंबर 2, विष्णु जैन ने कहा, मेरे दोस्त है, उन्होंने ये कहा अभी कि मैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पालन करते हुए ये चीज कर रहा हूं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से फिर विष्णु भाई, वहां तो वजू खाना था, वजू खाना पे तो वजू लोग कर रहे थे, अभी तक तो नमाज हो रही थी। यही नहीं, कोर्ट ने आदेश भी दिया है जब सीलिंग हो गया वजू खाना का, तो कोर्ट ने यहां तक कहा है कि ठीक है, इन लोगों के लिए अलग से एक वजू खाने का प्रबंध किया जाए ताकि वहां पे मुसलमान नमाज पढ़ सके। तो आप नेचर कैरेक्टर तो चेंज नहीं कर सकते फिर उस जगह का, फिर आप कैसा कर रहे हो? आप फंस गए। अब आप जबरदस्त पूजा हो रही थी जो 93 में बिना ऑर्डर के बंद करवा दी गई। विष्णु जैन जी, वारिस पठान फिर से कह रहे हैं कि कोर्ट ने बाबरी स्ट्रक्चर के ऊपर जो वर्डिक्ट दिया वो फेथ पर दिया, वो आस्था पर दिया। मैं फिर पूछना चाहती हूं कि क्या वो टाइटल सूट था या वो ये इस बात का फैसला था कि वहां पहले क्या था और अब क्या है? देखिए, दोनों केसेस, दोनों प्रश्न बाबरी केस में मिक्स थे, टाइटल सूट भी था और ये भी प्रश्न था कि वहां पे पहले क्या है। और वारिस भाई कह रहे हैं, सर एक मिनट, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। वारिस भाई से आज आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, 2020 1 SCC पेज 1, ये सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर जजमेंट का साइटेशन है, उसका पैराग्राफ 710.1, उसका पैराग्राफ 710 पॉइंट पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो फाइंडिंग दी कि यहां पे नीचे स्ट्रक्चर था नॉन इस्लामिक, वो सही है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने फाइंडिंग दी है कि यहाँ 12वीं शताब्दी का मंदिर था, वो फाइंडिंग भी सही है। और नाविका जी एक बात और बताना चाहता हूं, वारिस भाई जरा ज्ञान व्यापी में जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, बहुत लर्नेड आदमी, उसको पढ़िए। इसके जो वॉल्यूम नंबर 3 है उसमें राम जी की शिला मिली है पेज नंबर 3 में, हनुमान जी का स्कल्पचर मिला है पेज नंबर 4, 12 और 27 पे, डेटी मिली है पेज नंबर 6 पे, कृष्ण भगवान की मूर्ति मिली है पेज नंबर 7 पे, योनिपट मिला है पेज नंबर 8 और 50 पे, मकर मिला है पेज नंबर 9 पे, ह्यूमन फिगरीन मिली है पेज नंबर 16 पे, बहुव्राह की मूर्ति मिली है पेज नंबर 19 पे, शिवलिंग मिला है पेज नंबर 21, 34, 35, 44 पे, विष्णु भगवान का स्कल्पचर मिला है पेज नंबर 23, 41 पे, गणेश जी की मूर्ति मिली है पेज नंबर 24, 49 पे, फीमेल डेटी की मूर्ति मिली है पेज नंबर 25 पे, एलिफेंट मिला है पेज नंबर 26 पे, फिर उसके बाद एनिमल फिगरीन मिली है पेज नंबर 36 पे, द्वारपाल मिला है पेज नंबर 40 पे, व्याला मिला है पेज नंबर 73 पे। इतने प्रूफ है वारिस भाई। और साथ ही साथ इसके बाद फाइंडिंग दी है कि ये जो पिलर केस करता था, आपने इतना बड़ा पढ़ के सुना है, 4 लाइन मेरे को भी पढ़ने का अधिकार है ना नाविका जी आपके शो में। मस्जिद के 4 लाइन मुझे भी पढ़ने का अधिकार तो है ना। इंस्क्रिप्शन मिला, सुनिए और उस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि 1676 में औरंगजेब ने मस्जिद को बनाया, 1676 में। बिल्कुल, आपके ऊपर एविडेंस और प्रूफ्स की बम्बार्डमेंट हो गई है, तो आपको जवाब देना चाहिए भी, और मैं जवाब देने का समय भी दूंगी। इसीलिए फायर राउंड 3 में मैं सवाल पूछ रही हूं, अभी तक के सबूत हिंदू पक्ष के साथ है क्या, इसलिए आप बेताब हैं? यही सारे सबूत पेश किए गए थे बाबरी के टाइम पर भी। सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा फाइंडिंग मैं भी पढ़ के सुना दूंगा, इंग्लिश तो दोनों को आती है और मेरे से ज्यादा अच्छी आती है। A finding of title cannot be based in law on the archaeological findings which have been arrived at by ASI. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ के सुना रहा हूं मैं। Between the 12th century to which the underlying structure is dated and the construction of the mosque in the 16th century, there is an intervening period of 4 centuries. No evidence has been placed on record in relation to the course of human history between the 12th and the 16th century. No evidence is available in a case of this inquiry on the issue of destruction of the underlying structure and whether the pre-existing structure was demolished for the construction of the mosque. Title 2, the land must be decided on settled legal principles and applying evidentiary standards which govern a civil trial. ये उस टाइम पे था, ये इस वक्त भी अप्लीकेबल होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आप जो रिपोर्ट की बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस वक्त भी मान्यता नहीं दी थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो रिपोर्ट आया वो आप लोग कह लोगे, आपको बोला था सर्वे का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करना। सवाल उठाया है वारिस पठान जी ने, जवाब दीजिए। विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट से पढ़कर सवाल उठाया है पठान साहब ने, आप जवाब दीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप मानते हैं नहीं मानते हैं, उसके बारे में आपको क्या बोलना है? नहीं देव, पठान साहब ने, मैं तो दोनों की बात का जवाब दे रहा हूं। भैया जरा बोलने दो अच्छे से। मैं जवाब दे तो सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। नाविका कुमार, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। पठान के मैसेज आ चुके हैं, मैं आपकी की तो बात सुन रहा हूं कब से, आप मेरी बात कब सुनेंगे विष्णु भाई? डिबेट खत्म होने के बाद। अच्छा, बोलने तो अभी देखिए, अभी जो मैं बोलूंगा ना, मानते या नहीं मानते, अभी जो मैं बोलूंगा उसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट से पढ़कर सुनाया, आपने मुद्दा। अरे जब मेरे को आप कंप्लीट कर दो, एक करके बात पे आ जाता हूं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट कर दो। अरे सर, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आया है, मेरे दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है। क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नाविका कुमार और विष्णु जी मानते हैं नहीं मानते? हाँ या ना में जवाब दे दो ना। फर्स्ट कोर्ट तक इस मुद्दे पे बहस की गई और सुप्रीम कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है, मतलब लिबर्टी देता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख दूं तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा, और अगर कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा। अब इन्होंने यहां पे ये बात मिस कर रहे हैं कि जब धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है तो आपके एक हिंदू मंदिर के परिसर में घुस के अगर आप शिवलिंग पे हाथ धोने लग जाएं और थूकने लग जाएं और वजू करने लग जाएं तो वो शिवलिंग फाउंटेन नहीं हो जाएगा सर, वो शिवलिंग ही रहेगा। अगर हम कह रहे हैं कि उस शिवलिंग की जांच कराई जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, तो क्यों दर्द हो गया और क्यों सुप्रीम कोर्ट आ गए? सर आपके बीच में मैंने नहीं बोला, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरे बीच में मत बोलिए सर। इसका फैसला 12 मई सर, ये नाविका जी ऐसे कैसे? नाविका जी अगर ऐसे रहेगा तो फिर ये भी बात नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, फिर मैं भी कंटिन्यूअस बोलता रहूंगा।
देखिए 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश सवाल कर रहा हूं दिया। मैं। उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया गया सुप्रीम कोर्ट और अंजुमन ने कहा कि यह जांच नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आपको इतना यकीन है कि फाउंटेन है तो आइए जांच हो जाए, क्यों नहीं कहते? आज आप इस चैनल पे कहिए कि आप इस जांच का सहयोग करेंगे और फाउंटेन है कि शिवलिंग है इसकी जांच होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आइए बोलिए। और मैं तो कह रहा हूं सुनेंगे तो कि बात प्लेसेस बढ़ेगी ऑफ ना। वर्शिप जवाब तो एक्ट सुनो आप मेरा। सोचते हो कि आपके पक्ष में लागू होता है। मैं नहीं मानता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपके पक्ष में लागू होता है। और नाविका जी ये सारी बातें कोर्ट ने कही हैं। अब बात आ जाते हैं इनके राम मंदिर के जजमेंट पे। जरा आज आपके चैनल पे बोल रहा हूं, राम मंदिर का जब भी समय मिलेगा आपके चैनल पे पूरा एजेंडा पढ़ के सुनाऊंगा। राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1528 से लेके 1855 तक यहाँ नमाज पढ़ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? आपने एक बहुत बड़ी बात बोल दी विष्णु भाई, इसका जवाब तो सुनो मेरा। और राम मंदिर पे जाएंगे, पहले यहाँ तो आ जाए, पहले ज्ञान वापी बात पे। होती चले जाता है। आप गुस्साएं बाबरी की चर्चा तो वो फेयर है। विष्णु जैन जी राम मंदिर की बात करें तो आप कहते हैं एजेंडा घुसाया जा रहा है। सवाल, सबसे पहला सवाल वारिस पठान जी, सबसे पहला सवाल जो जवाब देना चाहिए आपको, कोर्ट कह रही है कि मुलायम सिंह यादव सरकार ने 1993 तक वहां पूजा चल रही थी, 93 के बाद रोका, बैरिकेड लगाकर, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, किसी कोर्ट ने नहीं कहा था। आज कोर्ट ने जब यह कह दिया है कि पूजा हो जाए तो आपको दिक्कत क्या है? इस बात का जवाब आप आज तक नहीं दे रहे। नहीं, देखिए दिक्कत यही है ना कि फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप में क्यों आया था? अरे उस वक्त यही था ना कि इस तरह के इश्यूज देश में उठते रहेंगे, नफरत फैलती रहेगी, अराजकता का माहौल आता रहेगा। किसने फैलाई? 1993 में पूजा बंद करके नफरत किसने फैलाई? नहीं कर सकते आप। 1993 में बंद करके नफरत किसने फैलाई? सुनिए, जो मुलायम सिंह ने बंद किया, अरे नफरत तो क्या है, देखिए देश में जब से भाजपा ये नफरत तो डबल हो चुकी है। मैं वहां पे नहीं जाना चाहता। मुलायम सिंह यादव के समय में प्यार मोहब्बत थी क्या? एफिडेविट फाइल किया कर दिए गए थे, मगर 6 दिसंबर को कॉन्स्पिरेसी के तहत नहीं, मैं मुलायम सिंह का प्रवक्ता नहीं कि उन्होंने क्यों बंद किया। मैं मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो है, उन्होंने जो पक्ष रखा है मैं उस पक्ष की पैरवी कर रहा हूं, उस पक्ष को मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि बराबर पक्ष रख रहे हैं वो लोग। और सुनिए नविका जी, अभी आपने कहा ना कि नहीं हो सकता, उस वक्त भी केस ट्रायल चल रहा था कोर्ट में। आज भी विष्णु जैन ने कहा कि हमारा वहां पे शिवलिंग था, उस पर आपने वजू किया इतने सालों से। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ये बोल दिया है कि वो शिवलिंग नहीं वजू खाना था, या वजू खाना नहीं शिवलिंग है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, उसके पहले आप पूरे देश में डिक्लेयर करते जा रहे हो ये वाली बात। देश में अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं तो आप भी फिर वजू खाना मत बुलाइए, आप भी फिर वजू खाना मत बुलाइए। उनका जो पेटिशन है वो उसके हिसाब से बोल रहे हैं, आपका जो पेटिशन है आप उसके हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन विष्णु जैन जी, सवाल ये है कि 1993 की दिसंबर में जब ये बंद किया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई और पूजा बंद किया गया, तब तो वहां पूजा चलती थी। तो ऊपर मस्जिद कैसे थी जब 93 तक वहां नीचे तहखाने में, व्यास तहखाने में पूजा हो रही थी? क्या इस बात का कोई जवाब मिला आपको वारिस पठान साहब से? नहीं, वो मंदिर ही नहीं था, अरे वो कोई मूर्ति ही नहीं थी, ऐसा बोलना है उनका। मेरे से कोई जवाब नहीं मिला। सर अब आप देखिए, कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते। ये कहना है सर आप जवाब देने दीजिए। मंदिर नहीं था तो पूजा क्यों हो रही थी? मंदिर नहीं था तो पूजा क्यों हो रही थी वहां पर? बोलना है, मैं तो नहीं पैदा हुआ था तभी, मैं तो बहुत छोटा था। 93 में आप पैदा नहीं हुए थे? मैं तो 93 में आप पैदा नहीं हुए थे वारिस पठान जी? कमाल करते हैं आप। विष्णु जैन जी जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, इस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो हिंदू मंदिर का है, और ये जो घटना है मैं आपको बता रहा हूं, ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है। इस केस का टर्निंग पॉइंट है, और एक ऐसा अनसुना सच था जिसको आज तक किसी ने नहीं बोला कि यहाँ पे पूजा हो रही थी, वो पूजा रोकी गई, और इसलिए पूजा रोकी गई कि इसका कैरेक्टर बदला जा सके। इस बात को जरा गौर करिएगा, मेरी बात को। पूजा इसलिए रोकी गई कि इसका कैरेक्टर बदला जा सके। भाई कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके ग्राउंड फ्लोर पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल रही है और पूजा पाठ हो रही है? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसकी वेस्टर्न साइड पे, नाविका जी वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड पे जरा मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं,
वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी का विग्रह होता है, वहां पूजा होती है? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें हनुमान जी गणेश जी की पूजा होती है, जिसमें पीपल पेड़ होता है? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें वजू खाने में आपको शिवलिंग मिलता है? और नाविका जी बात तो ये है, देखिए आज वारिस भाई इस बात का जवाब नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि ये फाउंटेन है, मैं कह रहा हूं शिवलिंग है। सवाल नंबर 2 है, वो सबसे क्रूशियल सवाल है नाविका जी, मैंने तो 50 प्रूफ दिए, नाविका जी से कवर फायर लेने के बावजूद आप मेरी बात का जवाब नहीं दे सक रहे। चलिए बताइए, कैसे कह रहे हैं कि एक मंदिर है या नहीं? इनसे पूछिए कि कैसे कह रहे हैं मस्जिद? आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए और फिर आप अपना सवाल विष्णु जैन जी से पूछेगा। वारिस पठान, मेरा सवाल आपसे 1993 दिसंबर तक वहां पूजा होती थी, ये कोर्ट ने कहा है और मैं कोर्ट का ऑर्डर आपको पढ़कर सुना देती हूं और ये जज साहब का लिखना है मेरे द्वारा। इसी बात में दिनांक 17/1/2024 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया है और उसमें वो लिखते हैं कि हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत सी प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तय खाने में मौजूद है। ये कोर्ट कह रही है, आपने कहा वहां कोई नहीं था, मैं आपको कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़कर सुना रही हूं। फिर कोर्ट के जज ने लिखा है, तय खाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बगैर किसी विधिक अधिकार के तहखाने के भीतर पूजा माह दिसंबर 1993 से रोक दी है। तो पूजा की मूर्तियां भी थी, पूजा भी हो रही थी, कोर्ट कह रही है, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा सुनिए, आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी गूगल सर्च कर लिया, मैंने भी आज रिसर्च किया है कि मैंने यही क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई वाज पूजा स्टॉप ऑन 1993 का टाइम। आंसर क्या है? बिकॉज एट दैट टाइम उन लोगों ने ये मालूम पड़ा कि वहां पर कोई मूर्ति नहीं थी, इसलिए पूजा नहीं हो रही थी। ये उस वक्त का ये है जो गूगल के अंदर अवेलेबल है, आप भी चेक कर सकते हो, मैं भी उसी से रिसर्च करके बोल रहा हूं। मेरे आप सवाल का आप जवाब दो, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। गूगल का एविडेंस, आपका एविडेंस कि वहां मूर्ति नहीं थी हम गूगल के बेसिस पर मान ले, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर ना माने। अब इसकी क्या रीजनिंग हो सकती है विष्णु जैन जी? आप ही बता सकते हैं, मैं वकील तो हूं नहीं। मैं आपको दिखा दूं विष्णु जैन। नाविका जी, अरे हर बात विष्णु जैन नाविका जी, मैं तो आज हाथ जोड़ रहा हूं वारिस भाई को। गूगल के एविडेंस पे गूगल क्या बोल रहा है उसके आधार पे आप इतने जटिल केस को, इतने सेंसिटिव मैटर को डिसाइड करेंगे। कल को अगर गूगल बोल देगा कि वो शिवलिंग है तो आप मान लेंगे? आप कुछ तो ऐसी बात किया करो वारिस भाई जो एक सेंसिटिव बात हो। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कोर्ट ने फाइंडिंग देखिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने, आप एक एडवोकेट हैं, अगर आप गूगल पर रिलाई करके जज के कोर्ट में आप कहेंगे गूगल में ये लिखा है तो मुझे पता नहीं जज आपसे क्या कहेगा, लेकिन देश में लोग जो देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं मैं आप जान सकती हूँ। सवाल 4, फायर राउंड 4 लागू नहीं, क्योंकि ये पहले केस में कहा गया था, तो फैसला क्या जल्द आएगा? अब ये फैसला जल्द आना चाहिए या नहीं, आप इस बात पर राजी है कि नहीं फैसला जल्द आना चाहिए? वारिस पठान। देखिए, अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई होने वाली है। मुझे यकीन है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील वगैरह है वो सारे जब एविडेंस प्लेस करेंगे, प्रूफ प्लेस करेंगे, तब मुझे यकीन है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पक्ष में फैसला करेगा। नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हम कायदे कानून के तहत अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। नाविका जी, आपको पता है हमारी एक मस्जिद हो चुके हैं, एक मस्जिद हमारी षड्यंत्र के तहत ये लोगों ने खा गए हमारी एक मस्जिद को, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया बाबरी के टाइम पे। इस वक्त हम कानून के दायरे में रहकर पूरी जोश लगा देंगे, पूरा जोर लगा देंगे ताकि हमारी दूसरी मस्जिदों के ऊपर आके न आए। हम लड़ेंगे, कानून के दायरे में रहकर लड़ेंगे, संविधान के दायरे में रहकर लड़ेंगे, हमारी लड़ाई जारी रखेंगे कोर्ट कचहरी के अंदर। एक ऐतिहासिक इनजस्टिस थी जो हमारे साथ हुई थी, उस ऐतिहासिक इनजस्टिस को रेस्टोर करने का काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने किया है और वो ऑर्डर मुझे लगता नहीं है सेटिस्फाइड होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट, मुझे ऐसा लगता है हम लोगों के पक्ष में फैसला देगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहेगा कि वहां पूजा पाठ हो रही थी और इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। वारिस पठान जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट, वारिस पठान जी
वारिस पठान जी, सवाल तो सुन लीजिए। आप तो सुप्रीम कोर्ट रात के 3 बजे चले गए थे, मालूम है, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का रास्ता दिखा दिया, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। सुनिए नविका जी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाइए, वहां पे आपकी पेशी रखिए, उसके बाद आइए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो नहीं कर रहे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। 7 दिन का टाइम दिया था आपको वहां से हटाने के लिए, आप तो रातों रात चले गए, वहां पर रुक जाते तो क्या फर्क पड़ता। मगर आपको तो बीजेपी के एजेंडा को आगे लेकर जाना है, आपको पोलराइज करना है, आपको हिंदू मुस्लिम करना है। आप रात को 3 बजे ज्यूरिसडिक्शन जानते हुए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, आप चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। वो प्रोसेस ऑफ लॉ है, और अगर विष्णु जैन जी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट के ऑर्डर पर जो कह रहे हैं 7 दिनों के अंदर, अब 7 दिनों के अंदर ऑर्डर आने के बाद घड़ी चलनी शुरू हो गई, उन्होंने 7 दिनों में पहले दिन में कर दिया। विष्णु जैन जी, इसमें भी दिक्कत है वारिस पठान को। मिनिस्टर चले गए, नहीं, एक मिनट, अब वारिस पठान जी, विष्णु जैन जी की बारी है, आप सुन लीजिए, फेडर डाउन, विष्णु जैन रिस्पॉन्ड। देखिए, जैसे ही कोर्ट का आदेश आया था, हमने और हमारी लीगल टीम ने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मेल किया था, और कोर्ट का ऑर्डर उनके संज्ञान में लाए थे। इस केस में अंजुमन इंतजामिया भी पार्टी है, और जिला प्रशासन को भी पूरी इंटीमेशन दी गई थी। उसके बाद जिला प्रशासन ने ये उपयुक्त समझा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाए, और हमने जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाए। और नाविका जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, कोर्ट का आदेश आने के बाद द क्लॉक्स स्टार्ट्स मूविंग, वो जो सुई है वो चलना शुरू हो जाती है, और इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की है। और वहां पे, और एक बात और बताना चाहता हूं, वहां पे ये गूगल से नहीं चलता है भैया, जो वहां पे मूर्तियां रखी गई हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो सेलार S2 है, S2 यही सेलार है जिसमें हम व्यास परिवार के तहखाने की बात कर रहे हैं। जो सेलार S2 है उसमें जितनी मूर्तियां थी जो उस समय वहां पे मौजूद थी, जो ASI ने पाई है अपनी जांच के दौरान, जिसकी वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ की इजाजत दी है, और वही मूर्तियां वहां पे रखी गई हैं जिसकी पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पे जितनी चीजें हुई हैं बाय फोर्स ऑफ लॉ हुई है। नाविका जी, मैं पूछना चाहता हूं, जब नवंबर 1993 में पूजा रोकी गई थी, तब क्या व्यास परिवार को मौका दिया गया था कि भैया हम आपको हटा रहे हैं, पर आप 7 दिन के अंदर कोर्ट चले जाइए? नाविका जी, 7 दिन क्या, 7 मिनट की मोहलत दे दी गई थी। 7 दिन नहीं, 7 मिनट की मोहलत दे दी गई थी, और इलीगली उन लोगों को बाहर डिस्पोजेस कर दिया गया था। नाविका जी, जब वहां बैरिकेडिंग लगाई गई थी, तब क्या 7 दिन की मोहलत दी थी कि 7 दिन देते हैं आपको, बैरिकेडिंग लगा रहे हैं? सही सवाल, लेकिन जवाब मुलायम सिंह यादव की सरकार को देना पड़ेगा। मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, लेकिन जंग जारी है। कोर्ट की जंग हो, लेकिन जंग जारी है। वारिस पठान, AIMIM, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच कौन जीतेगा, ये तो समय ही बताएगा। The News Hour.